Hello everyone, in the series of MCQs on DBMS, our today's topic is keys. कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कीज पर बेस्ड क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं और इस वीडियो में हम बेसिक क्वेश्चंस से लेके गेट नेट इसरो के क्वेश्चन सारे कवर करेंगे एंड यू विल सी कि अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो कोई भी क्वेश्चन है आप बहुत ईजिली उसको कर सकते हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चंस. Our first question is, which one is correct with respect to RDBMS? First option is primary key is a subset of super key is a subset of candidate key. Okay, इसमें हमारे पास तीन कीज दी हुई हैं, प्राइमरी, सुपर एंड कैंडिडेट, एंड हमें बताना है कौन सा सुपर सेट होगा कौन सा सबसेट होगा. सुपर की हमेशा हमारा सुपर सेट होता है. कैंडिडेट की इज अ मिनिमल की. मिनिमल की का मतलब है सुपर की में से कुछ एट्रीब्यूट्स हटा के हमें कैंडिडेट की मिलती है सच डैट जो एट्रीब्यूट्स हैं वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लस वो मिनिमल है. मिनिमल मीन्स अगर उनमें से हम कोई और एट्रीब्यूट रिमूव कर रहे हैं तो वो हमारी की नहीं बन पाएगी. और कैंडिडेट कीज हमारे पास एक से ज़्यादा हो सकती है. उन कैंडिडेट की में से हम किसी एक की को प्राइमरी की चूज करते हैं. सो आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, that primary key is a subset of candidate key which is a subset of super key. Our next question is, the primary key must be not null. This is true. Primary key हमारी null नहीं होनी चाहिए. Unique. Yes, primary key should be unique because वो हमारे tuples को uniquely identify करते हैं. So both these options are correct. So our correct option will be option D, option A and option B. A key that consists of more than one attribute to uniquely identify rows in a table is called composite key, candidate key, primary key, foreign key. Important term here is more than one attribute. Whenever we have more than one attribute, that will be our composite key. When a primary key is defined in the table, DBMS automatically creates a dash on a primary key column. Options are unique index, sequence, trigger, synonym. Okay, whenever we have a primary key, DBMS always creates a unique index on primary key column. How many primary key can a table in database have? Always to remember, in a single table we can have only one primary key. We can have more than one candidate keys, but primary key हमेशा one होती है. Next is, primary key should always be auto increment. Is this statement true or false? This is true. Notice here we have used word should. Must use नहीं किया है. It should be auto increment so that जितने भी values है वो unique रहे हमारी की, क्योंकि primary की main property यही है कि वो unique होती है. Next, this is the most important question in this tutorial. The minimal set of super key is called candidate key. Suppose this is my super key with 3 attributes. Now this is super key और candidate क्या है, इसमें से हमने कुछ attributes delete कर दिए हैं और delete करने के बाद भी वो tuples को uniquely identify कर रहे हैं. So let us say we have 3 attributes A, B and C. ये सुपर की के पार्ट है. अगर हमने सी को डिलीट भी कर दिया है, सिर्फ हमने ए बी रखा है, वो भी हमारे टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है, देन ए बी विल बी आवर कैंडिडेट की. एंड नाउ वी हैव यूज्ड अ वर्ड मिनिमल सेट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिनिमल सेट? डेट अगर हम ए बी में से कोई एक और एट्रीब्यूट रिमूव कर रहे हैं तो वो कैंडिडेट की प्रॉपर्टी को वायलेट कर रहा है. डेट मीन्स अगर से हमने ए को रिमूव कर दिया है और वी आर सेइंग ओनली बी इज द कैंडिडेट की. नाउ दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज कैंडिडेट की का मतलब ही यही है कि वो मिनिमल है. उसके अंदर से अगर हम कोई और एट्रीब्यूट डिलीट करेंगे तो वो कैंडिडेट की नहीं रहेगी, वो हमारे टपल्स को यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं करेगी. So whenever we have a question like minimal set of super key, its answer will be candidate key. Next is an attribute that is not part of any candidate key is known as. Now we can have more than one candidate key और वो सारे attributes जो किसी भी candidate key का part नहीं है, they are called non-prime attribute. ये जब हम normal forms करते हैं उसमें बहुत बार ये concept use होता है prime and non-prime attributes.
A dash key can be primary key. Foreign, primary, candidate, composite. Now a candidate key can be primary key, क्योंकि candidate keys के अंदर से ही हम एक key को primary key बनाते हैं. Next is, which key is used to make relations between two tables? जब भी हमारे पास relations between two tables का question है, its answer will be foreign key. Pick the odd one out. Foreign key, primary key, candidate key, super key. Now primary key, candidate and super key ये हमारे एक bunch में lie करते हैं. Foreign key is odd one out because it is used to relate two tables. बाकी जितनी भी keys हैं वो tuples को uniquely identify करने के लिए हम use करते हैं. The keys selected from the sets of candidate keys by database designer is called primary key. अभी हमने किया है कैंडिडेट कीज एक से ज़्यादा होती है जो हमारे टेबल को यूनिकली आइडेंटिफाई करती है और उनमें से किसी एक को हम प्राइमरी की बनाते हैं. An attribute or combination of attributes in one table whose values must either match the primary key in another table or be null. Now हम यहाँ दो टेबल्स की बात कर रहे हैं and whenever we have more than one table, its answer will be foreign key. Drop table cannot be used to drop a table referenced by a foreign key constraint. ये नेक्स्ट वीडियो में जब हम कंस्ट्रेंट करेंगे उसमें हम डिटेल में करेंगे. इसमें बस आपको ये याद रखना है जब भी हम ड्रॉप टेबल करते हैं कमांड यूज, उसमें हमारे पास कुछ कंस्ट्रेंट्स है और वो कंस्ट्रेंट्स हमारे फॉरेन की पर बेस्ड हैं. Now this question was asked in GATE और जब आप ये क्वेश्चन देखोगे देन यू विल रियलाइज कि अगर आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो बहुत आसान क्वेश्चन है. सो लेट अस सी. कंसीडर अ रिलेशनल टेबल विद अ सिंगल रिकॉर्ड फॉर ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट विद द फॉलोइंग एट्रीब्यूट्स. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट. ओके, सबसे पहले हम देखते हैं हमारे पास टेबल में क्या क्या गिवन है. रजिस्ट्रेशन नंबर, व्हाट इज दिस? यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स. सेकेंड हमारे पास एट्रीब्यूट है यूआईडी, यूनिक आइडेंटिटी नंबर, यूनिक एट द नेशनल लेवल फॉर ईच सिटीजन. ना इम्पॉर्टेंट वर्ड इज यूनिक एट नेशनल लेवल. थर्ड इज बैंक अकाउंट नंबर, यूनिक अकाउंट नंबर एट द बैंक. अ स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स और जॉइन अकाउंट्स. दिस एट्रीब्यूट स्टोर्स द प्राइमरी अकाउंट नंबर. नेक्स्ट एट्रीब्यूट है नेम, नेम ऑफ द स्टूडेंट. हॉस्टल रूम, रूम नंबर ऑफ द हॉस्टल. ओके, ये हमारे पास 5 एट्रीब्यूट्स हैं, उस पर बेस्ड हमारे पास ऑप्शंस हैं. फर्स्ट ऑप्शन इज रजिस्ट्रेशन नंबर कैन बी अ प्राइमरी की. ओके, सो इज इट ट्रू? यस, बिकॉज रजिस्ट्रेशन नंबर पे हमें गिवन है यूनिक रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ ईच रजिस्टर्ड स्टूडेंट. यूनिक है देन इट कैन बी प्राइमरी की. सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट. सेकेंड ऑप्शन इज UID is candidate key if all the students are from the same country. Now UID में हमें given है it is unique at national level. अब national level पर unique है और अगर सारे students same country को belong करते हैं that means सबकी UID unique होगी. Unique है तो हम उसको candidate key बना सकते हैं. So option B is also correct. Third option is if S is a super key such that S intersection UID is null. Now let us say S के अंदर हमने डाला है say this is S, ये हमारी सुपर की है with 2 attributes registration number and name. And question में given है that S intersection UID is null. That means UID हमने S के अंदर इंक्लूड नहीं की है. और अगर हम इसको S के अंदर इंक्लूड करते हैं then will it be a super key? Yes, क्योंकि सुपर की क्या है, अगर आपने उसके अंदर 3 एट्रीब्यूट लिए हैं और वो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रही है टेबल को, आप उसके अंदर और एट्रीब्यूट्स ऐड भी कर रहे हो उनको, तब भी वो यूनिकली आइडेंटिफाई करेगी. दिस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ सुपर की. सो ऑप्शन सी इज ऑल्सो करेक्ट. Now last option is bank account number is candidate key. Now अब हमें चेक करना है is it true? Now से बैंक अकाउंट नंबर पे हमारे पास क्या प्रॉपर्टी गिवन है? यूनिक अकाउंट नंबर एट द बैंक.
A student can have multiple accounts or joint accounts, and this attribute stores the primary account number. Now assume a scenario जिसमें हमारे पास we have two students A and B और दोनों ने एक जॉइंट अकाउंट खुलवाया हुआ है और उसके अलावा उनके पास कोई अकाउंट नंबर नहीं है. नाउ जॉइंट अकाउंट नंबर है और जो हमारा बैंक अकाउंट नंबर एट्रीब्यूट है वो स्टोर करता है प्राइमरी अकाउंट नंबर. एक ही अकाउंट है, जॉइंट अकाउंट है तो नंबर सेम होगा, सेम नंबर होगा, सो सेम अकाउंट नंबर हमें स्टोर करना पड़ेगा दोनों स्टूडेंट्स के लिए. अब दो स्टूडेंट्स के लिए सेम अकाउंट नंबर है, डेट मीन्स इट इज नॉट यूनिक, और यूनिक नहीं है डेट मीन्स इट कैन नॉट बी अ कैंडिडेट की. सो ऑप्शन डी इज रॉन्ग. और क्वेश्चन में हमें यही बताना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सो करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन डी. इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ना है. इसमें मेन यही है कि स्टूडेंट कैन हैव मल्टीपल अकाउंट्स और जॉइन अकाउंट्स. सो मेन डोमिनेटिंग फैक्टर इसमें है जॉइन अकाउंट्स. This is our last question. A many-to-one relationship exists between entity set R1 and R2. Now say this is set R1 and ये है हमारा set R2 और दोनों के बीच में many-to-one relationship exist कर रहे हैं. How will it represented using functional dependencies if PKR denotes the primary key attribute of relation R? Here we have many-to-one relationship. R1 के अंदर हमने 3 एंटिटीज लिए हैं, R2 के अंदर 2 एंटिटीज लिए और many-to-one रिलेशनशिप का एक एग्जाम्पल लिया है. अब हमें इसमें बताना है कि प्राइमरी कीज के बीच में क्या रिलेशन होगा. इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि R1 इज आवर स्टूडेंट एंटिटी सेट एंड R2 इज आवर क्लास एंटिटी सेट. नाउ अ क्लास कैन हैव मोर देन वन स्टूडेंट्स and each student is assigned to a single class. Many-to-one relationship है, so we can determine class from student. अगर हमें एक student के बारे में पता है तो हम उससे उसकी class determine कर सकते हैं. So इसमें हमारी dependency कैसे होगी? That class is dependent on student. You can take one more example. Student की जगह we can have employee. R2 relation can be department. एक डिपार्टमेंट में एक से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं बट एक सिंगल एम्प्लॉय एक सिंगल डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है. सो अगर हमें एम्प्लॉय के बारे में पता है हमें उसके डिपार्टमेंट के बारे में पता लग जाएगा. सो डिपार्टमेंट इज डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय. सो सेम वे क्लास इज डिपेंडेंट ऑन स्टूडेंट. सो अगर हमें प्राइमरी की गिवन है R1 की, then we can determine primary key of R2, or we can say primary key of R2 is dependent on primary key of R1. So our correct option will be option A. So that's all in this video. If you liked our video, please subscribe. Thank you all for watching this video.